Hello students, welcome to online study. So dear students, last time we had studied lesson from the diary of Annie Frank. So today we will study remaining part of this lesson from the passage Dearest Kitty. Saturday 20 June 1942. Our entire class is quaking in its boots. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next term and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Gian and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's leading lenses and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subjects I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. An essay on the subject, a chatterbox. What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook tucked in my bag and tried to keep quiet. That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come with convincing arguments to prove necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is the student's trait and that I would do my best to keep it under control. Now understand the explanation of this paragraph. Dearest Kitty. तो किटी किसका नाम था? ये लास्ट आपको बताया किटी किसका नाम रखा था? ये उसने अपनी डायरी का नाम रखा था। अब यहाँ पर बता रही है कि हमारी जो इंटायर क्लास है वहाँ पर जो उसकी एकदम किटी को बोल रही कि हमारी पूरी क्लास में उनके जो बूट्स मीन्स यहाँ दर कक्षा की जो पूरी टांगे जो एकदम ऐसे कर रही थी वो क्वैक मीन्स यहाँ पर शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस कि यहाँ पर वो जो है कांप रही थी। मिस इंडे इसका कारण आने वाली क्या थी? वो मीटिंग थी या क्लास थी जिसमें अध्यापकों ने क्या डिसीजन करना था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। आधी कक्षा ये मतलब बैट लगाने में लगी हुई थी, मीन्स शर्तें लगा रही थी कि जीएन और मैं हमारे बीच बैठे 2 लड़कों पर हंस हंस कर भाग दौड़े थे, सीएन और जैक्स पर, जिन्होंने क्या किया था? हॉलीडेज़ के लिए बचाए हुए अपने पूरे पैसे दाव पर लगा दिए थे और फिर रात से रात यही चलता रहा कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। देन उसके बाद बोलते हैं हाँ हो जाओगे, नहीं। इस तरह इन दोनों में मतलब बातचीत हो रही थी, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जी की उसमें जो था प्रार्थना भरी नजरें क्या थी और उसके जो एंग्री क्रोध भरे शब्द जो थे उसको मतलब साइलेंट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर वो लिख रही है कि यदि तुम मुझसे पूछो कि मैं कहूँगी कि हमारी कक्षा में नालायक कितने ज़्यादा हैं, ये कक्षा का 1/4 पीछे ही रखा जा सकता है और अर्थात उनको मतलब फेल किया जा सकता है, एक पार्ट मतलब फेल किया जा सकता है। बट बोलता है कि जो टीचर्स होते हैं तस्वीर क्या बताया कि एक स्ट्रेंज ह्यूमन स्ट्रेंज जीव होते हैं जिनके बारे में कह नहीं सकते कि वे क्या करते हैं। तो यहाँ पर आगे बता रही है यानी कि मैं अपनी फ्रेंड्स और अपने बारे में भी इतनी चिंतित नहीं हूँ कि हम पास हो जाएंगे। केवल एक सब्जेक्ट के बारे में वो निश्चित नहीं हूँ और वह क्या था? मैथमेटिक्स। कुछ भी हो बट
वो बताती है कि हम प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे से कहते रहे कि दिल मत छोड़ो, डोंट लूज योर हार्ट। होती कि मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ बहुत ठीक चल रही थी। वहाँ कुल 9 थे, 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर किसिंग और मैं बहुत ही बूढ़ा था, एकदम दकियानुशी था और वो बहुत मैथ पढ़ाता था। और मैं युगों से बोलते मुझसे बहुत काफ़ी टाइम से मुझे नाराज़ था। क्योंकि वो बोलती कि मैं बहुत बोलती थी। अनेक वार्निंग्स के बाद ही बोलता उसने उसे दंड के रूप में क्या दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक चैटर बॉक्स बातूनी, उसके ऊपर विषय लिखने को बता दिए कि लिखो, एक ऐसे लिखो। तो इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर भला आप क्या लिख सकते हो, इसके बारे में आनी बता रही कि मैं सोचूंगी कि मैंने ऐसा निश्चय किया। इसको एक शीर्षक मैंने अपनी नोटबुक में लिखा और उसे अपने बैग में डाल दिया और फिर खामोश बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश्ड, कि जब उस शाम को जो है यानी बताती कि मैंने अपना काम बाकी होमवर्क समाप्त कर चुकी थी, तो मेरी नज़र जो थी उस लिखे हुए पन्ने पर पड़ी। अपने फाउंटेन पेन के सिरे को वो क्या कर रही, चबा रही है और उसके सब्जेक्ट के बारे में सोच रही है, चैटर बॉक्स के बारे में। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, बड़ी बड़ी जगह वह छोड़ता हुआ इधर उधर बातें लिख सकता है। लेकिन कि बड़ी होशियारी में बात क्या थी इसमें कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए क्या था, एक कुछ दलीलें दी जाएँ। और वो रेगुलर सोचती रही। अचानक उसके मन में विचार सूझा कि मैंने 3 पृष्ठ लिख दिए ले जो मिस्टर किसिंग ने जो मुझे लिखने को दिए थे, बट मैं संतुष्ट हो गई। बोलती है उसने क्या तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है, और ये भी लिखा कि इसे काबू में रखने के लिए मैं पूरा अपना प्रयत्न करूँगी, मतलब काबू पाऊँगी अपने को ज़्यादा बोलने में। बट क्या होता है कि इस बोलती मैं सभी कोई आदत से कभी ठीक कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसकी माँ भी होती है मेरे जैसे बोलती थी। बोलती अपने को बताती है कि उसकी मदर भी ऐसी बोलती है, मेरी मदर भी ऐसी बोलती है, वो भी ज़्यादा बोलती है बट मुझसे ज़्यादा नहीं बोलती है। और आप बोलते हैं कि ये तो क्या है, एक वंशानुगत आदतों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं वो। देन उसके बाद Mr. Kissing, but that I would never be able to cure myself of the habits since my mother talked as much as I did, not more. After that, there is not much you can do about inherited traits. यहाँ पर भी बताया गया है कि वो जितना बोलती थी जैसे उसकी मदर बोलती, बट वो अपनी मदर से भी ज़्यादा बोलती थी। अब ये क्या था, इनहेरिटेड ट्रेट्स मीन्स वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, की मतलब जो पेरेंट्स से मिलती है, जो उनको जो भी क्वालिटीज़ होते हैं गुण, उनको बदल नहीं सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी अ सेकंड एसे। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack," said Mr. Chatterbox. The class wrote. I had to laugh too. Though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, it was the time to come up with something else. Something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. Yours, Annie. Extracted from the diary of a young girl. It's slight adaptation. Now understand the explanation.
मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट आर्गूमेंट। इन आर्गूमेंट के ऊपर जो है मिस्टर किसिंग जो थे वो हंसी। बट बोलते कि किंतु जब मैं अपने अगले पार्ट के दौरान मैं फिर बोलने लगी तो मुझे लिखने के लिए एक अन्य लेख दे दिया उन्होंने। इस बार दिया गया लेख क्या था? एक असाध्य बातूनी, इनकरेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा दिया कि जिसको करेक्ट न की जा सके। तो ऐसा उन्होंने दोबारा उसको ऐसे दे दिया एक और। तो मैंने इसको लेकर फिर सौंप दिया, लिख दिया और दे दिया। 2 पार्टों के दौरान क्या बताती है वो मिस्टर किसिंग को शिकायत करने कुछ ना मिला उनको, किंतु अंत में जो है 3rd लेसन के दौरान जो है वो अधिक सहन नहीं कर सके। और एनी फ्रैंक ने एक अक्सर में बोलने के लिए जो उसको एक डांट स्वरूप एक लेख लिखना था, जिसका शेष क्या दिया उन्होंने? कहाँ कहाँ कहाँ। बातूनी औरत ने कहा इस तरह। कक्षा में ठाके लगाते हुए वो भी हंस पड़ी और बोलती मुझे भी हंसना पड़ा है, नहीं बता रही है। यदि भी बोलती जो ज़्यादा बोलते हैं कि विषय बोलती संबंधी होती है कि मैं अपनी इमेजिनेशन को सब तक उसमें समाप्त कर चुकी थी। बट अब टाइम क्या था, मुझे कुछ और सोचना था, कुछ फंडामेंटल, कोई न्यू थॉट्स, मौलिक या कोई नया विचार। मेरी सहेली थी एक सैनी जो कविता लिखने में बहुत ही निपुण थी। उसने की पेशकश करती है कि वह लेख को शुरू करती है और अंत तक कविता के रूप में लिखने में मेरी मदद करेगी, ऐसा वो सोचती है। और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग ने एक हास्यास्पद विषय के बारे में मेरा एकदम फनी की तरह मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये तो बोलती कि मैंने निश्चय किया कि इस मजाक का उल्टा उसी पर असर पड़े। तो मैंने अपनी जो पोइम थी वो पूरी कर ली और वो सुंदर थी। उसमें क्या बताया उसने कि एक बतख की माँ और उसका एक हंस वैन फादर के बारे में थी, जिसके 3 चिकन मतलब छोटे छोटे बच्चे चूजे थे और जिन्हें पिता ने क्या किया, चोंचे मार मार कर मार दिया क्योंकि वे बहुत कां करते थे। तो सौभाग्यवश क्या होता है कि मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सहज में ही ले लिया और उसने क्या किया, कक्षा में ये कविता पढ़कर सुनाई। ये कविता पढ़कर सुनाई, साथ ही साथ टिप्पणियाँ जोड़ते हुए तक अनेक अन्य क्लासेस में अभी उन्होंने स्टोरी सुनाई। तब से बोलते हैं मुझे जो है बात करने की छूट मिल गई, परमिशन मिल गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। तो इसके ऑपोजिट मिस्टर किसिंग क्या होता है, आजकल कैसे बन के हमेशा जो है वो एकदम फनी टाइप मजाक की बातें किया करते हैं। और एंड में उसने क्या लिखा अपने इस डायरी में, तुम्हारी एनी, योर्स एनी। सो दिस इज द लेसन। ये लेसन जो था, ये डायरी जो थी वो एनी की जो पब्लिश की गई है उसके बारे में उसने क्या अपने अनुभव लिखे हैं इस लेसन के बारे में बताया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, रीड दिस लेसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन say with me. Okay, thank you, take care.